Sat Shri Akal to everybody. Today's video is about the Sikh Shahidi Saptah. That marks the martyrdom of the four Sahibzade, the four sons of Guru Gobind Singh Ji, along with various Sikh warriors. Today, that is the 8th day of the Po Mahina according to the Nanak Shahi calendar, was the martyrdom of the elder two sons of Guru Gobind Singh Ji. It was 1704 that a battle was fought in which 40 Sikh warriors, which included 3 of the Panj Pyare and 2 of the elder sons of Guru Gobind Singh Ji, they had attained martyrdom in this war, in which these 40 people were against lakhs of soldiers of the Mughal army. So I have described about the Sikh Martyrdom Week in my video last year, and I will put the link of that video in the description box. Now about today's video, my mother forwarded me a video from Facebook and she wanted me to do something around that today, and that is why I am doing this. Okay, it is about the Shahidi Saptah, but we are talking about, I am going to read to you poetry written by Allah Yar Khan. He was a very renowned poet, very unbiased poet, I should say, and he was a staunch believer that what Guru Gobind Singh Ji did was something out of the world, and he really, I think he was a devout of Guru Gobind Singh Ji, and because of his writings, which is a tribute to the martyrdom of the elder Sahibzade and the martyr of the younger Sahibzade, he has written 2 beautiful pieces, which is called Ganj-e-Shahida, which is for the elder Sahibzade's martyrdom, and Shahidae Wafa for the younger ones. Since today is the Gurpurab of the Shahidi of the elder Sahibzade, I will read certain verses from Ganj-e-Shahida. It is a very long poetry. I cannot read the whole of it, but whatever verses I felt are important from there, I have picked them up and I will read it out for you. So a little bit about Allah Yar Khan. He lived from 1870 to 1956, and the Muslims were so annoyed with his writings that praised Guru Gobind Singh Ji and the way he sacrificed his father, his sons and his family towards the good cause of the human beings, to the cause that each person can have a different religion that he follows, the freedom to religion. ठीक है, तो अल्लाह यार खान की उसको कहते हैं मरसीहे. उन्होंने कुछ 2 मरसीहे लिखे, गंजे शहीदा एंड शहीदा ए वफा. तो गंजे शहीदा में से आज मैं आपको कुछ verses पढ़ के सुनाऊंगी. There are a few difficult words. I will try and explain to them from as much as I understand of it. Right? तो आइए सुनते हैं. जिस दम हुए चमकौर में सिंहों के उतारे, झल्लाए हुए शेर थे सब गैस के मारे. कि सब बहुत गुस्से में थे. by the time they reached that place, आंखों से निकलते थे दलेरों के शरारे, लाइक शोले निकल रहे थे आंखों में से. सतगुर के सिवा और गजब
नाक थे सारे. Not only the Guru, even the 40 warriors were very brave and courageous. गुस्से से नजर जाती थी अफजाए अदू पर कि दुश्मन की आर्मी जब देखते थे तो उनको बहुत गुस्सा चढ़ रहा थे. तेगे से निगाह पड़ती थी दुश्मने गुलू पर. जब दूर से दरिया के किनारे नजर आए, डूबे हुए सरसा में प्यारे नजर आए. कि उनके कुछ सोल्जर्स थे जो उनको दे कुड सी देम डेड इन द रिवर. ये देख के बिगड़े हुए सारे नजर आए. सबको बहुत गुस्सा आ रहा था. बिफरे हुए सतगुर के दुलारे नजर आए. इवन द सन्स ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी, द 2 elder sons, अजीत सिंह एंड जुझार सिंह, जो गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ थे किले में, दे वर ऑल्सो फीलिंग वेरी एंग्री एट दैट. कहते थे इजाजत ही नहीं है हमें रन की, मिट्टी तक उड़ा सकते हैं दुश्मन के चमन की. So Alaya Khan is, in his word describing what would have happened at that time, कि क्या उन बच्चों के मन में चल रहा था, what they were talking and what Guru Gobind Singh Ji was talking, right? So then this is before the night before that the war took place in the next morning. तूफान जहद दरिया को अभी पार करेंगे, ठोकर से हर एक मौज को हम वार करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू अलाया खान, द बॉयज आर टेलिंग दिस कि तूफान की तरह हम दरिया को पार करेंगे और एंड वी विल डिफीट द ऑपोजिशन आर्मी. बद अहद सितमगारों से पैकार करेंगे, लाइक झगड़ेंगे हम सामने दुश्मनों से. हम दोनों ही 10 लाख को फिनार करेंगे. सो इसे कि हम दोनों आपके बेटे, वी आर इनफ फॉर दैट एनिमी आर्मी ऑफ 10 लाख पीपल, दे से इट वाज. तो आंखों से कई खलासे प्यारे भी नहीं नेहा, दादी किधर है माई किधर है भाई कहाँ है. आंखों से कई खलासे प्यारे भी नेहा है कि ना हमें हमारी दादी का पता है, ना हमारी माँ का पता है, हमारे दूसरे भाई कहाँ गए हमें वो भी नहीं पता है. और सामने जितने हमारे साथ हमारे प्यारे थे, जितने हमारे साथ हमारे लोग थे, उनमें से भी कुछ लोग नजर नहीं आ रहे हैं, लाइक दे हैव बीन किल्ड. तो these were the first 3 verses from that poetry written जंगे शहीदा. All right, now I am reading the 4th verse. धोखा दिया हर सी को पैमा शिकनों ने. कि पैमा शिकनो is somebody who doesn't keep promises. धोखा दिया हर सी को पैमा शिकनों ने, बेमहरों ने बेधर्मों ने ईमान शकीनों ने. जिनका कोई ना धर्म है ना ईमान है, उन लोगों ने हमें बहुत धोखा दिया है. जब इतना कहा जुल दिया एहसान शिकनों ने, पेशानी पे बल डाले परेशान शिकनों ने. थे चीब जबी लहर या शीशे में पड़ी थी, माथे पे पसीना था या अफशां सी जड़ी थी. Then now I'm going to the 15th verse. It is a very long poetry. I cannot really read the whole thing. 130 something verses are there. So now I have moved on to the 15th verse, which says, जिन सिंहों ने कल मौत के साहिल था उतरना, कल सुबह था जिन खालसों ने जंग में मरना. बली से शहीदों के हुआ जब की गुजरना. बली is towards the head side of the people. When Guruji walked towards the head side of the people, मुश्किल हुआ इस जा के कदम आगे को धना. It was difficult for him to move ahead on that earth. चूमा कभी हलकूम दहन चूमने बैठे. कि अगर वो चेहरे की तरफ, दहन इस चेहना, कि चेहरे की तरफ जाते थे तो चेहरे चूमते थे, और पायती आए तो चरण चूमने बैठे, और पैरों की तरफ आए तो पैर चूमने लगे. फरमाए सहर सो के ये होशियार न होंगे, अब होके ये फिर नींद से बेदार न होंगे. हम होंगे मुसीबत में मगर यार न होंगे.
कि these people tomorrow they will die and they will never wake up. हम मुसीबतें झेलेंगे, लेकिन the people who love us, जिनके लिए हम ये कर रहे हैं, they will not have to face problems, and that is why we are fighting. हम होंगे मुसीबत में मगर यार ना होंगे, ये सी प्यारे ये वफादार ना होंगे, कि ये मेरे प्यारे सिख हैं जो मेरे वफादार लोग हैं, ये भी कल के बाद नहीं होंगे. सोए हुए शेरों को गले अपने लगाया, और उन सोते हुए जो वॉरियर्स थे उनको अपने गले लगाया. सतगुरु ने अपने दलेरों को अपने गले लगाया. सहर सोके ये होशियार न होंगे, अब होके ये फिर नींद से बेदार न होंगे. हम होंगे मुसीबत में मगर यार न होंगे, ये सी प्यारे ये वफादार न होंगे. सोए हुए शेरों को गले अपने लगाया, सतगुरु ने दलेरों को गले अपने लगाया. So it was not that he worried only about his sons. He was worried about each and every person who was with him, and each and every person who believed in him. So now I'm moving on to the verse 28. So this is the situation where he's walking into the room or the place where his sons are sleeping. The two elder sons, Baba Ajit Singh Ji and Baba Jujhar Singh are sleeping. तो सोए हुए बच्चों को कहा सर को पकड़कर, सोए हुए बच्चों को कहा सर को पकड़कर, चल दोगे अब्बा को मुसीबत में जकड़कर. Feel the pain of Guru Gobind Singh Ji through the words of अल्लाह खान. बहुत खूबसूरत लिखा है उन्होंने. सोए हुए बच्चों को कहा सर को पकड़कर, चल दोगे अब्बा को मुसीबत में जकड़कर. थी जिंदगी लिखी हुई किस्मत में उजड़ कर, फिर मिलेंगे, फिर मिलने का वादा तो किए जाओ बिछड़ कर. थे चार हो अब दो ही, सहर ये भी ना होंगे, कि चार में से दो तो सुबह मेरे साथ नहीं होंगे. हम सब्र करेंगे जो अगर ये भी ना होंगे, फिर भी मैं सब्र करूंगा. तो गुरु गोबिंद सिंह जी फरमाते हैं इन द वर्ड्स ऑफ अल्लाह यार खान, कल दोनों ही परवान चढ़ोगे. सो गुरु गोबिंद सिंह जी इज टॉकिंग टू हिज सन्स. कल दोनों ही परवान चढ़ोगे, दुख भोगेंगे हम, खुलद में तुम चैन करोगे. खुलद इज स्वर्ग. दुख भोगेंगे हम, खुलद में तुम चैन करोगे, होते ही सहर जागे जुदाई हमें दोगे. कि सुबह होते ही तुम मुझसे जुदा हो जाओगे, सपने में खबर आके कभी बाप की लोगे. ए प्यारे अजीत, ए मेरे जुझार प्यारे, हम कहते हैं कुछ सुनते हो दिलदार प्यारे. So each time you read this, while I was reading this, I had goosebumps and I had tears in my eyes describing that whole situation was anyway very bad. उन्होंने वो शहीद हुए हमारे लिए, but the way the poet has written it, it really gives you a real, you can actually, very picturesque kind of a description that is there. Okay, so now I'm moving on to the verse 106. Okay, it says, Lo, jao sidharo. So in between, Guruji had said that the young boys will not go. They were stopped from going. So in the morning when the battle began again, when they were finished with all their ammunition that they had, then they decided that हम पांच करके each one of us will go out and make as much damage possible to the opposition army. So पांच करके सब लोग जा रहे थे. तो उनमें से ये दोनों भाई भी जा रहे थे. तो गुरु गोबिंद सिंह जी अपने बच्चों को कह रहे हैं, लो जाओ
सिधारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, मर जाओ या मारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, रब को न बिसारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, सिक्खी को उभारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, वाहेगुरु अब जंग की हिम्मत तुम्हें बख्शे, प्यासे हो बहुत जाम शहादत तुम्हें बख्शे। कितना खूबसूरत लिखा है। Those moments were very touching, but the poet has done full justice in describing what would have happened then. जाओ लो जाओ सिधारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, मर जाओ या मारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, रब को ना बिसारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, कि भगवान को हमेशा याद रखा और इस धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। सिक्खी को उभारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, वाहेगुरु अब जंग की हिम्मत तुम्हें बख्शे, प्यासे हो बहुत जाम शहादत तुम्हें बख्शे। Now it's the verse number 110. So this is describing how the war scene is, you know, कि दो साहिबजादे who are just 16 and 14 years of age are fighting so courageously and so bravely. Excellent warriors they are, and this is the description of what would have happened there. 10-20 को जख्मी किया, 10-20 को मारा, 10-20 को जख्मी किया, 10-20 को मारा, एक हमले में एक ने 21 को मारा, खन्नास को मारा, कभी इब्लीस को मारा. खन्नास एंड इब्लीस आर नेम्स ऑफ शैतान्स. खन्नास को मारा, कभी इब्लीस को मारा, गुल मच गया, एक तिफिल ने 40 को मारा. कि शोर मच गया उधर. तिफिल इज छोटा बच्चा, कि शोर मच गया उधर कि एक छोटे बच्चे ने 40 सोल्जर्स को मार गिराया. तो एक हमले में एक ने 21 को मारा, खन्नास को मारा, कभी इब्लीस को मारा, गुल मच गया, एक तिफल ने 40 को मारा. बच बच के लड़ो कलगियों वाले के पिसर से. कलगी वाले इस गुरु गोबिंद सिंह जी एंड पिसर मीन सन. कि गुरु गोबिंद सिंह जी के बच्चे हैं ये, इनसे बच के लड़ो, बच के रहो. ये निमचा लाए हैं गुरु की कमर से. तो निमचा इज अ स्मॉल खंडा और स्मॉल कृपान. कि ये जो कृपान लेके आए हैं वो गुरु जी की कमर से उतार के लेके आए हैं. सो इन बच्चों से बच के रहो. दिस इज व्हाट द पीपल आर टॉकिंग अमंगस्ट देमसेल्व्स. कि बच के लड़ो कलगियों वाले के पिसर से, ये निमचा लाए हैं गुरु जी की कमर से. Now I'm moving on to the verse 112. So अब ये हुआ है कि one of the brothers is down. He has been shot. तीर मारा जा चुका है उनको और वो नीचे हैं. और दूसरा भाई उनके सर गोद में लेकर से कहा, भाई से बोलो. सर गोद में लेकर के कहा, भाई से बोलो. इस ख्वाब गिरा से कहीं होशियार हो तो लो. हम कौन हैं देखो जरा, आंख तो खोलो. कि तुम्हारा भाई मिलने आया है, तुमसे आंख खोलो. सोने की ही ठानी है, अगर मिलके तो सो लो. भाई तुम्हें जंग शहीदा की जमी है, ठानी हुई हमने भी बसेरे की यही है. कि तुम अगर शहीद होने जा रहे हो तो मैं भी शहीद ही होने वाला हूं. ओके, सो द नेक्स्ट वर्स इज, इतने में खदंग आके लगा है जिगर में. सो नाउ द अदर
एक तीर आके उसके जिगर में लगा। इतने में खदंग आके लगा हाय जिगर में, था तीर कलेजे में, ये कांटा गुले तर में। तारीख जमाना हुआ सतगुर की नजर में। तारीख जमाना इसकी अंधेरा छा गया, सतगुर की नजर में अंधेरा छा गया। तूफान उठा खाक उठी बहर में बर में, कि इतना तूफान आया, इतनी आंधी आई in the sea and on the land, in the water and on the land. तूफान उठा खाक उड़ी बहर में बर में, तयूरा में गिरा लखते जिगर पर, कि एक बेटे के ऊपर दूसरा बेटा गिरा। क्या गुजरी है इस वक्त कहूं क्या मैं पिदर पर। पिदर इज फादर, कि उस बाप पे क्या गुजरी होगी, I cannot even think about it. And then I'm reading to you verse number 117, which says, बस एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए। बस एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे जहां खुदा के लिए। चमक है मेहर की चमकौर तेरे जर्रों में, यहीं से बन के सितारे गए समा के लिए। गुरु गोबिंद के लखते जिगर अजीत जुझार, फलक पे एक चांद, यहां तो दो चांद हैं जिया के लिए। कि द धरती ऑफ कि जो धरती है जहां पे ये लोग शहीद हुए हैं, इट इज शाइनिंग विद द ब्राइटनेस ऑफ 2 मून्स ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी, है ना। तो चमक के मेहर से कि चमकौर तेरे जर्रों में, कि चमकौर की धरती के जर्रे जर्रे में इतनी ज्यादा ब्राइटनेस है। गुरु गोबिंद सिंह के लगते जिगर थे अजीत सिंह एंड जुझार सिंह जी, कि आसमान फलक पे तो एक चांद है, कि आसमान में तो एक चांद है, लेकिन यहाँ 2 चांद हैं टू इल्यूमिनेट द प्लेस। जिया के लिए, जिया मीन्स टू ब्राइटन एंड एनलाइटन। So these were a few verses from Ganj-e-Shahida, and please wait for the next episode that I will be recording. That will be based on Shahida-e-Wafa, which is a tribute in poetry form by Allah Yar Khan, and I will read a few verses from that in the next episode. On the day of the Shahadat of the Chote Sahibzade, which is the 13th day of Po, today being the 8th day. So I hope this was some information about the Sikh religion and how people actually valued the gurus, and the fact about Allah Yar Khan is, I will talk about it in the second video, what happened to him after he wrote all this, right? So next time, see you there.